Hello students, myself Professor Hiral Bausa from Raffle College Vapi, and I am going to teach you subject Environmental Science. In last session we start our fourth one unit, that is the pollution, environmental pollution, in which we complete our first topic, that is the air pollution. Now in today's session we start our new topic, that is the second one, pollution, water pollution, in which we discussed first of all what is water pollution, then उसके types, उसके effects, उसके control measures. Okay, चलिए, so let's start water pollution. First of all, introduction. Technically speaking, the pure water is in the form of H2O. प्योर वाटर कौन से फॉर्म में होता है? H2O के फॉर्म में. बट द वाटर विच इज़ suitable for drinking is known as a potable water, and it contains the several minerals to satisfy our body requirements. ड्रिंकिंग वाटर को क्या बोलेंगे हम? पोर्टेबल वाटर बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है. द वाटर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज हैज़ ऑल्सो डिफरेंट डिमांड्स. फॉर एग्जाम्पल, वेल नोन केस ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बॉयलर के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसके अंदर विच शुड नॉट कंटेन एनी हार्डनेस, उसके अंदर कोई हार्डनेस होता नहीं, जैसे कि सॉल्ट इन दी वाटर विच कोजेज द डिटोरियोरेशन ऑफ द इट्स वॉल्स. बॉयलर के लिए सिंपल वन वाटर चाहिए जिसके अंदर सॉल्ट होना नहीं चाहिए. अनदर एग्जाम्पल फॉर डाइंग ऑफ द क्लोथ्स डाइंग करने के लिए इट्स रिक्वायरमेंट वुड बी डिफरेंट, उसके लिए डिफरेंट होता है. तो हर एक चीज़ के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है. जैसे कि पीने वाले पानी के लिए कैसा होना चाहिए? वो प्योर होना चाहिए वाटर, जिसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए. हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट वाटर की क्वालिटी यूज़ होती है. सो द पर्पज़ फॉर विच वाटर इज़ टू बी यूज्ड डिसाइड्स द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर. नाउ हियर वी कैन ट्राई टू गिव वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन. Definition is any type of impurities, कोई भी impurities, ये impurities क्या है? Such as floating bodies, oil and grease, silt and clay particles, colored water and dirty smell, ये सारी impurities है. Is present in the water in a higher quantities than acceptable limit causes the water pollution. Water pollution किसे बोलेंगे? Water pollution means any types of impurities such as floating bodies, oil and grease, silt and clay particles, colored water, dirty smell, etc. present in the water in higher quantities than the acceptable limit causes the water pollution. The another definition of water pollution are as follows. Generally speaking, water pollution is a state of deviation from the pure condition whereby its normal properties and function are affected. Water pollution के लिए different definitions है. To be more precise, water pollution can be defined as the presence of some foreign substance or impurities in water in such a quantity so as to constitute a health hazard by lowering the water quality and making it unfit for use. Now this is the simple one definition, that the presence of some foreign substances or the impurities in the water in such a quantity, बहुत सारी क्वांटिटी में, so as to constitute a health hazard. उससे क्या होगा? तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए. अगर आपने इम्प्योर वाटर ड्रिंक किया तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है. हेल्थ हिजार्ड बाय द लोअरिंग दी वाटर क्वालिटी, वो वाटर की क्वालिटी को लो करेगा एंड मेकिंग इट अनफिट फॉर दी यूज़. दैट इज़ कॉल्ड दी वाटर पॉल्यूशन. Most surface waters usually contain the small quantities of suspended particles, organic and inorganic substances, and number of living organisms such as bacteria, fungi, algae, viruses, etc. When the concentration of these substances in water increases, water के अंदर क्या होता है? तो जनरली वाटर के अंदर ये सारे पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, देन माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, etc. When these concentration of these substances in the water are increases, अगर ये ज़्यादा हो गए, the water becomes polluted and hence unfit for use. Some other substances pollute the water even at the low concentration, include the poison, toxic chemicals, and
पैथोजेंस, राइट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में से जो निकलता है वह उसमें से भी निकलते हैं, वो केमिकल्स टॉक्सिक रहते हैं, राइट, उसके अंदर पॉइजन रहता है। तो ये भी सारे पार्टिकल्स हैं जो वाटर को पॉल्यूट करेंगे। Most of water pollution is man-made. It may also occur naturally by the addition of soil particles, that is through the erosion. Most of the pollution कैसे होता है? तो it is by the man-made, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में से जो निकलता है वो। then second one thing, हम जो हमारे पूंजा मटेरियल होते हैं वो हम रिवर में डाल देते हैं, तो इससे रिवर के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट। और नेचुरली कब होता है? जब सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन होने की वजह से वो सारे सॉइल कहाँ पे जाएगा? होने के बाद वो वाटर बॉडीज़ के अंदर जमा होते हैं। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट एंड लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम दी रॉक्स। पॉल्यूटेड वाटर में बी टर्बिड मीन्स मडी, जो मड बन जाता है, फॉर स्मेलिंग अनप्लेजेंट एंड मे कंटेन अ नंबर ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस से क्या है? पैथोजेंस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कोज करता है, राइट, जो जिसकी वजह से डिजीज़ फैलता है। इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड अदर पर्पजेज। अगर ये सारे पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए, राइट, बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए, इसके अंदर फंगी हुआ, तो उसकी वजह से क्या करें हो जाएगा? तो हम उसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, बाथिंग पर्पज़ के लिए, वॉशिंग के लिए और अदर पर्पज़ के लिए वो फिट होगा नहीं, राइट। वाटर पॉल्यूशन इज़ नॉट confined to surface water but it has spread to sea as well as ground water. surface water में ही नहीं, but वो sea के अंदर, ओशन के अंदर भी होता है, राइट, बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ द ऑयल स्प्रेड, उसकी वजह से मराइन पॉल्यूशन होता है, राइट। एंड ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड सरफेस के नीचे है वाटर, वो भी क्या होता है? पॉल्यूटेड होता है। वाटर पॉल्यूशन हैज़ रीच अलार्मिंग proportion in the recent years in big cities and industrial areas. चलिए, तो ये हो गया व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन। नाउ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। वाटर का स्टैंडर्ड्स, उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, राइट। पीने के लिए कैसा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। द डेफिनेशन ऑफ वाटर क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंडेड यूज ऑफ द वाटर विच मे बी कंजप्टिव, दैट इज़ द ह्यूमन कंजम्पशन, एंड द नॉन कंजप्टिव, दैट इज़ फॉर द इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इरीगेशन अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल ह्यूमन यूज, पावर जनरेशन, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। तो ये वाटर क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो उसका जो यूज़ है, जो पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि ह्यूमन के लिए क्या होगा? तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए होगा। देन सेकेंड वन नॉन कंजप्टिव, दैट इज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरीगेशन के लिए, पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जो हम जनरेट करते हैं उसके लिए, रिक्रिएशन के लिए, ये सब के लिए डिफरेंट क्वालिटी वाटर की, और उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब पे डिपेंड करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज यूज ऑफ वाटर, सर्टेन क्वालिटी क्राइटेरिया आर एस्टेब्लिश्ड एंड बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड बाय द हेल्थ एंड अदर रेगुलेटिंग एजेंसी। तो ये जो हमारा पर्पज़ रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके बेस पे उसका क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। और ये क्राइटेरिया किसने स्पेसिफाइड किया है? तो बाय द हेल्थ एंड अदर रेगुलेटिंग एजेंसीज ने ये क्राइटेरिया डिसाइड किया है। एंश्योर्स दैट द वाटर क्वालिटी इन अ रिसोर्स इज सुटेबल फॉर द पर्पज यूज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर यूज रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर प्योरिटी। ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायर्स द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी बिकॉज वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए, राइट, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। वेयर एज वाटर ऑफ रिलेटिवली लोअर क्वालिटी इज़ एक्सेप्टेबल फॉर द अदर पर्पज़ लाइक द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ स्टॉक, बोटिंग एंड स्विमिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वेस्ट डिपोजल। तो इसमें कैसा चाहिए? लोअर क्वालिटी का भी चलेगा, बट पीने के लिए कौन सा होना चाहिए? हाईएस्ट का स्टैंडर्ड्स प्योरिटी होनी चाहिए। द एजेंसी इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पेसिफाइंग द नॉर्म्स फॉर वेरियस एंड एफ्लुएंट्स आर। तो ये कौन स्पेसिफाई करेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ISI, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
Indian Council of Medical Research ICMR and United States Public Health Service USPHS। तो ये सारी एजेंसीज है जो डिसाइड करेंगी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर, राइट। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लेड एज पर द ISI आर शोन इन द टेबल 4.3। ISI मीन्स व्हाट, द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिन्होंने डिसाइड किया है वाटर क्वालिटी का स्टैंडर्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, रिकमेंडेड दिया है कि इतनी लिमिट में ही परमिसिबल लिमिट है वो चीज़ के लिए। तो टोटल सॉलिड्स कितने होने चाहिए वाटर के अंदर, तो लेस देन 500 ppm। ppm मीन्स व्हाट, पार्ट्स पर मिलियन, दैट मीन्स व्हाट, मिलीग्राम पर लीटर के लिए वो यूज़ होता है, राइट। फिर हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, लेस देन 100 ppm। टेस्ट कैसा होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट। कलर 10 to 20 ऑन प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। ऑड्यूर 0 to 4 P0 वैल्यू। टेम्परेचर 10 सेल्सियस टू 15.6 सेल्सियस। pH वैल्यू, सबसे ज़्यादा pH वैल्यू जो हम ये वाटर प्योरीफिकेशन का हम यूज़ करते हैं ना, आप एक्वा वाटर यूज़ करते हैं ना, उसके लिए उसके अंदर pH वैल्यू होता है, तो वो 6.5 to 8 ppm होना चाहिए। तो वैसे डिफरेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं और उसके रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया हुआ है, राइट। ओके, चलिए देन द नेक्स्ट, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कितने टाइप के वाटर पॉल्यूशंस होते हैं, तो जनरली देर आर द टू टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फ्रेश वाटर पॉल्यूशन एंड मराइन वाटर पॉल्यूशंस, राइट। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। टोटल कितना अर्थ का सरफेस, 71% है जो वाटर से कवर गया है। और हमें इंडिया की बात करें तो इंडिया में वेस्ट से ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ये पूरा एरिया इंडिया का वाटर से कवर हुआ है। सिर्फ नॉर्थ है जो वाटर से कवर नहीं है, राइट। बट ग्राउंड वाटर इज़ द ओनली मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द मेन विच मेक्स ओनली 0.6% of the total water of earth. Major types of water pollutions are fresh water pollution and marine pollution। चलिए ना, fresh water pollution कैसे होता है वो देखते हैं। फ्रेश वाटर पॉल्यूशन, द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर पॉल्यूशंस आर, फ्रेश वाटर में कैसे पॉल्यूशंस होता है, द फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल सेवेज। इंडस्ट्रियल सेवेज की वजह से जो हमारा फ्रेश वाटर है, जो रिवर के अंदर है, जो लेक के अंदर है, वो क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। इंडस्ट्रीज में से जो कचरा निकलता है वो। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू रिवर्स एंड लेक्स। सच डिस्चार्ज इज आइदर pour out from the industrial sewage pipes or leak from the industrial sewage soaking pits। तो जो इंडस्ट्रीज़ में से लीक होता है, जो रिवर के अंदर वो डालते हैं कचरा, उसकी वजह से पहला पॉल्यूशन होता है फ्रेश वाटर के अंदर। देन सेकेंड इज़ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो हम फर्टिलाइजर्स, जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, प्लांट के लिए पेस्टिसाइड्स। ऑल द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एक्सेट्रा हैव टॉक्सिक केमिकल्स। इन सब के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है। और ये केमिकल्स जब रेन होती है तब वो प्लांट में से ये सारे केमिकल्स कहाँ पे जाते हैं, वो वाटर के अंदर वापस से रिवर के अंदर जाते हैं, राइट। व्हेन दीज केमिकल्स आर वॉश्ड अवे बाय द रेन वाटर, दे गेट कलेक्टेड टू द स्टीम और लैंड डाउन टू द ग्राउंड वाटर, और वो स्टीम के अंदर जाते हैं, फिर ग्राउंड वाटर के अंदर वो जाएगा, राइट, बाय द सॉइल, लैंड में से वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा पानी वाटर का। फिर हैवी मेटल्स, several heavy metals like copper, lead, selenium, mercury enter the freshwater bodies through the industries, mines, automobiles, exhaust, etc. When the water is consumed by the plants and animals, the metals get in their bodies and become the poisonous। ये जो हैवी मेटल्स है वो अगर वाटर के अंदर जाएगा और वाटर कंज्यूम करेंगे एनिमल्स और ह्यूमन प्लांट्स, तो वो क्या हो जाएंगे, उनके अंदर पॉइजनस हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज एंट्रोफिकेशन। एंट्रोफिकेशन क्या है? एंट्रोफिकेशन इज अ process by which a body of water becomes overly enriched with mineral and nutrients which induce the excessive growth of algae।
सॉरी यूट्रोफिकेशन की वजह ये क्या है, वो एक प्रोसेस है जहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो वाटर बॉडी क्या हो जाती है, वो वाटर बॉडी ओवरली एनरिच हो जाती है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स उसके अंदर बहुत सारे हो जाते हैं वाटर बॉडी के अंदर, और जिससे जो वहाँ पे क्या होता है, वाटर में जो एल्गीज जो वीड होती है वो उनका ग्रोथ एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है उसकी वजह से, और वो ऑक्सीजन का लेवल डिप्लेट कर देते हैं. Eutrophication, fertilizers and other nutrients are used in the forms of to promote the growth of plants. Plant के growth के लिए हम fertilizers का use करते हैं. Some of these nutrients find their way to water bodies. These nutrients promote the growth or algae and other plants, resulting in the oxygen depletion. इसकी वजह से क्या होगा, तो वाटर बॉडीज़ के अंदर ये एल्गी और वीड का सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का डिप्लेशन, ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज़ करेंगे, राइट. तो वो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन डिप्लेट हो जाएगा, और जो वाटर के अंदर हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, right. That is the eutrophication. Then fifth one is sedimentation. Fifth one is sedimentation. Sedimentation means what? It's a process. वो क्या करता है, तो वो स्टीम और लेक के आसपास जो मिट्टी रहती है ना उसके कण को वो जमा करते हैं उसके अंदर, राइट. तो ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को सॉइल पार्टिकल्स इन द स्ट्रीम एंड लेक बेड और स्ट्रीम के ऊपर ये मिट्टी के कण जमा करते हैं. इट इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन विच लीड्स टू सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन होता है ना, जब डिफॉरेस्टेशन होता है, तो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, पेड़ काट लेते हैं तो वो जगह पूरी क्या हो जाएगी आपकी, वहाँ पे सिर्फ सॉइल ही रह जाएगा, और जब रेन होगा तब बारिश के पानी की वजह से वो सॉइल कहाँ पे जाएगा, वो वॉश अवे हो जाएगा, और वो धीरे धीरे कहाँ पे जमा होते हैं, स्टीम के अंदर जमा होते हैं. द रेन वाटर कैरीज द सॉइल टू द फ्रेश वाटर बॉडीज. देन नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स. वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यू हो जाते हैं. प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स इन द ड्रिंकिंग वाटर contaminates the water. When such water is consumed by the humans, it causes the several diseases like diarrhea, jaundice, etc. Every year, the lakhs of people die because of the infectious organisms. अगर हम आप इम्प्योर वाटर पीते हो, ड्रिंक करते हो, तो उसकी वजह से डिजीज़ होता है, राइट. देन थर्मल पॉल्यूशन. Thermal pollution is the increase in the temperature of water. Big industries and power plants use water as a coolant. बिग इंडस्ट्रीज़ में और पावर प्लांट में क्या होता है, तो वो वाटर का यूज़ करते हैं कूलेंट पर्पज़ के लिए. व्हेन दे रिलीज दिस वाटर, इट इज़ हीटेड एंड राइजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी. जब ये वाटर रिलीज़ करते हैं वापस से, तो ये वाटर क्या होता है, वो हीट होता है ज़्यादा, और वो टेम्परेचर को क्या करता है, राइज़ करता है, वाटर बॉडी के टेम्परेचर को राइज़ करता है. इन विच इट इज़ रिलीज्ड, it accelerates the biological process in water and often depletes the oxygen in the water bodies. Then ये हो गए सारे फ्रेश वाटर पॉल्यूशन के पॉइंट. ये फ्रेश वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, तो भाई फ्रेश वाटर पॉल्यूशन के अंदर हमने देखा, फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल सेवेज की वजह से, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, देन हैवी मेटल्स, यूट्रोफिकेशन, सेडिमेंटेशन, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स एंड थर्मल पॉल्यूशन. इसकी वजह से फ्रेश वाटर्स होते हैं, सारे फ्रेश वाटर पॉल्यूटेड होते हैं. नाउ मराइन वाटर पॉल्यूशन. मराइन वाटर पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है, डिस्चार्ज ऑफ sewage in a coastal bays and estuaries severely threatens the marine life, which is already depleting by the overfishing, right. Discharge of sewage in the coastal bays. coastal area के अंदर sewage कचरा रहता है, राइट. एंड एस्टोरीज मीन्स जो टाइडल माउथ है हमारा वाटर का, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज जो हमारा टाइडल माउथ है, अ लार्ज रिवर वेयर द टाइड मीट्स द स्ट्रीम, जहाँ पे वो टाइड स्ट्रीम से मीट करते हैं वो, तो वहाँ पे सेवेज कचरा होना, राइट. तो वो कचरे की वजह से मरीन लाइफ पे क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, राइट. और ओवर फिशिंग करते हैं, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है. ऑयल एंड सेकेंड वन, ऑयल स्पिल्स इन दी ओशंस
इंक्रीजिंग दिस ओशन के अंदर क्या होता है, तो ऑयल स्पिल्स हो जाता है। ऑयल स्पिल्स की वजह से मराइन लाइफ क्या हो जाती है, मराइन लाइफ को प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पे मरीन पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। इट कैन नाइदर बी रिमूव नॉर कंटेन्ड बिकॉज ऑयल कैन नॉट मिक्स विथ वाटर। हम उसे रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज ऑयल वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, तो वो ऐसे ही अंदर रहेगा और वो सारे केमिकल्स किसके अंदर जाएंगे, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको वो उनके लिए हैजार्डियस हो जाएगा। इट ब्रिंग्स द टॉक्सिक एलिमेंट्स इन दी several industries also discharge their waste into the ocean. It brings the toxic elements in the seawater which can kill the marine life. The water pollution can also be classified as under the main four टाइप्स है, फ्रेश एंड मराइन, बट आप इसे ऐसे भी क्लासीफाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, colloidal impurities and dissolved impurities. Suspended impurities means what? Suspended, that means solid form that cannot be completely soluble in the water. जो completely soluble water के अंदर होगा नहीं, जो solid form में होगा. Colloidal impurities means a number of molecules with the boundary surface between the solid phase and water. water और जो boundary के बीच में रहता है वो जो सस्पेंडेड वो इम्प्योरिटीज़ है वो लार्ज फॉर्म में होता है, और जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ है वो टाइनी फॉर्म के अंदर रहता है. देन डिसॉल्व, जो पार्टिकल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं वो, राइट. देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड इट्स इफेक्ट्स. दिस इज अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस, जो पार्टिकल्स है उसके अकॉर्डिंग. माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूट्रिएंट, सस्पेंडेड मैटर एंड ऑक्सीजन डिप्लेशन सब्सटेंसेस. तो ये सारे पार्टिकल्स हैं जो पॉल्यूटन क्रिएट करते हैं वाटर के अंदर, राइट. द मेन टाइप्स इज फ्रेश वाटर पॉल्यूशन एंड मराइन पॉल्यूशन, राइट. चलिए, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. नाउ इफेक्ट्स, वाटर की इफेक्ट्स क्या है. इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. तो फर्स्टली अगर आपने इम्प्योर वाटर ये अनफिट वाटर पी लिया तो पहले तो क्या होगा, डिजीज़ होंगे, जैसे कि जॉन्डिस, डायरिया, मलेरिया, ये सारे डिजीज़ क्रिएट होंगे, राइट. ओके, तो चलिए देखते हैं. द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन दी वाटर. जो पॉल्यूटेंट वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. Pollutants brings out physical and chemical changes that make the water unfit for drinking and harmful to aquatic life. The main effects of water pollution on living beings are as follows. First, industrial waste discharged into the water contain a lot of toxic substance that make the water unfit for drinking and bathing. Industrial waste जो वाटर के अंदर डिस्चार्ज करते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जो वाटर को अनफिट बनाता है. किसके लिए, तो ड्रिंकिंग और बाथिंग पर्पज़ के लिए. अनट्रीटेड डोमेस्टिक सेवेज when released into the water bodies becomes a breeding ground for a number of organisms and cause the waterborne disease. अनट्रीटेड डोमेस्टिक सेवेज जो होता है, डोमेस्टिक स्टेवेज जो अनट्रीटेड होते हैं, तो उसकी वजह से वाटरबॉर्न डिजीज़ हो जाते हैं. ऑयल स्पिल्स आर वेरी हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल्स एंड लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैरीन लाइफ. मोर एवर द क्लीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑल्सो causes a lot of damage to the marine habitat. Pollution of water also leads to a reduction in the number of aquatic plants and animals due to the destruction of habitat and the nesting places. Then next, fifth one, ignition of arms and weapons release a large amount of mercury. weapons बनाते हैं तो वो क्या रिलीज़ करता है, mercury रिलीज़ करता है. when the water contaminated with mercury is used for drinking by the animals and human being, अगर ये mercury वाला पानी animal और human ने पी लिया, it causes the numbness of lips and tongue. numbness means what, तो आपको nerve problems हो जाते हैं. दैट मीन्स उसे पैरेंथेशिया बोलते हैं. तो आप इसमें क्या होता है, यू लूज सम और ऑल सेंसेशन इन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ योर बॉडी. आपका सेंसेशन अफेक्ट होता है, सेंसेशन फील होता है, आपको कुछ फील होगा ही नहीं. यू वॉन्ट फील अ लाइट टच, आपको कोई टच भी करेगा वो पार्ट के ऊपर तो आपको वो फील होगा नहीं, पेन भी नहीं होगा, राइट. तो उसे हम बोलेंगे नबनेस.
It also lead to the blurred vision and mental disorder. The products uh, due to eutrophication, such as the algae and plants, cover the entire surface of water. The algae use of so much oxygen that the aquatic animals and other plants die due to the lack of it. यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से एल्गी और प्लांट्स ग्रो अप होंगे, और वो ग्रो अप होंगे तो वो पूरे वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोटिंग करते रहेंगे, और वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन टेक करते हैं, तो उसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल रहते हैं उनको क्या हो जाएंगे, वो डाई हो जाएंगे, राइट. ओके, तो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल सीवेज है, राइट, उसको वो हम इस इंडस्ट्रियल सीवेज, इंडस्ट्रियल पानी, जो गंदा पानी रहता है, उसको हम प्योरीफिकेशन करके जो प्योरीफाई करके पानी रहेगा उसका अगर यूज़ होता है रीयूज़ करेंगे. देन जो हमारा पूंजा मटेरियल है हम वो रिवर में नहीं डालेंगे और उसको जगह पे हम उसे डस्टबिन में ला देंगे, तो पानी वाटर बॉडीज़ हमारी पॉल्यूटेंट नहीं होगी, राइट. ओके, चलिए देखते हैं. The water pollution can be checked or at least minimized by the following measures. First, the sewage should be suitably treated before releasing it into the water. It is one of the important means to recover the usable water from the sewage. It involves the 3 steps. Sewage आप जो वाटर के अंदर रिलीज़ करते हो, बट उससे पहले उसे क्या करना है, हमें रिलीजिंग करने से पहले उसे यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करना है. जो वाटर उसके अंदर जो वाटर है उसको हम दूसरे यूज़ में, जो इंडस्ट्रीज़ का वाटर है हम दूसरे पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो उसको कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, तो 3 स्टेप्स से कन्वर्ट होंगे. यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेप इज़, इन द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज, द लेयर एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड सच एज द सेडिमेंटेशन एंड फिल्टरेशन. तो जो वो सेवेज के अंदर जो पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, राइट, तो उसे क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन, तो वो फिल्टरेशन करेंगे कि उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्ट है उसे को हम फिल्टर कर देंगे. वो होगा हमारा पहला वाला स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इन दी सेकेंड स्टेप, दैट इज़ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज, एयर इज सप्लाइड टू प्रमोट द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. एयर सप्लाई करेंगे और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करेंगे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको. दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द शैलो स्टेबिलाइजेशन और ऑक्सीडेशन पॉइंट्स. उसके अंदर इट रिजल्ट्स, वो क्या करेगा, तो इट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ CO2, वो CO2 रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लज और बायोसॉलिड. द स्लज इज कंटिन्यूसली एरेटेड फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन. एरेटेड मीन्स व्हाट, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. ओके, तो स्लज बाद में कंटिन्यूसली वो गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. इन अपर लाइटेड जोन ऑफ वेस्ट वाटर एल्गी आर ग्रोन टू प्रोवाइड द एरिएशन बाय द प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन. तो जो अपर लाइट जोन होगा वेस्ट वाटर का, तो वहाँ पे क्या ग्रोन अप हो जाएगी, एल्गी ग्रोन अप हो जाएगी, राइट. ओके, एंड द थर्ड स्टेप, in the third step, that is the tertiary step, turbidity in wastewater by the presence of nutrients, nitrites, phosphates, etc. dissolve the organic matter, metal और pathogens. तो जो टर्बिडिटी वेस्ट वाटर के अंदर होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे ये, तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को, मेटल को और फिटॉन्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डिसॉल्व करेंगे एंड इज़ रिमूव्ड बाय दी फिजियोकेमिकल प्रोसेस. This step involves the chemical oxidation of wastewater by the strong oxidizing agents. वेस्ट वाटर को अंदर ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस रहेंगे, ये क्या करेंगे, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, मेटल से इन सबको डिसॉल्व कर देंगे. कैसे, तो बाय दी केमिकल ऑक्सीडेशंस ऑफ वेस्ट वाटर बाई द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. कौन से एजेंट है, सच एज द क्लोरीन गैस, परकोलेट सॉल्ट्स, ओजोन गैस एंड यूवी रेडिएशन. ये क्लोरीन, दैन ओजोन गैस एंड यूवी रेडिएशन, ये सारे जो
ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट्स है, तो उसको वो रिमूव करेंगे। आफ्टर द टर्शियरी ट्रीटमेंट द वेस्ट वाटर कैन बी डिस्चार्ज इनटू द न्यूट्रल वाटर्स और यूज फॉर द इरिगेशन। तो वापस से जो वाटर बचेगा बाद में, ये सब निकल जाने के, रिमूव हो जाने के बाद जो वेस्ट वाटर बचेगा, वो वेस्ट वाटर किसके लिए, वो उसे वापस से रिलीज़ करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं न्यूट्रल वाटर के अंदर, नेचुरल वाटर के अंदर, और उसका यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो बनाया गया है पूरा फॉर्म। यहाँ पे ये एफ्लुएंट फॉर्म जो ओरिजिनली सेवेज है वो, उसको प्योरीफिकेशन किया। प्योरीफिकेशन करने के बाद प्योरीफाई करने के बाद दैट मीन्स जो सॉलिड फॉर्म है वो नीचे जमा हो गया। देन फिर उसके बाद सेकेंड वन स्टेप किया। सेकेंड वन स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड वन स्टेप के अंदर एयर सप्लाई किया। एयर सप्लाई करने के बाद ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ। फिर जो बाकी के होंगे वो डिसॉल्व होके नीचे आएंगे, और लास्ट में फाइनली जो वाटर है वो थर्ड स्टेप के बाद रिवर के अंदर, स्ट्रीम के अंदर वापस से जाएगा बाय इरिगेशन पर्पस के लिए। ओके, देन नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। इंडस्ट्रीज में जो निकलते हैं वो शुड बी suitably treated before releasing them into the water. The process requires different steps depending on the nature of pollutants. For example, the acid and alkalides can be naturalized. एसिड एंड अल्कानाइड्स कैन बी नेचुरलाइज्ड, उसे कैंसिल किया जाता है, इनवैलिड किया जाता है एसिड और अल्कालाइंस जो वाटर के अंदर रहते हैं वो। द कोलोडियल मटेरियल्स कैन बी कोआगुलेटेड। कोआगुलेटेड मीन्स उसे चेंज किया जाता है सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर। वाइल द मेटेलिक सॉल्ट्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड। थर्ड वन, हॉट वाटर शुड बी कूल्ड बिफोर रिलीज फ्रॉम द पावर प्लांट्स। जो पावर प्लांट्स में से हॉट वाटर रिलीज़ करते हैं तो उसको रिलीज़ करने से पहले कूल डाउन करेंगे, उस कूल डाउन करना चाहिए, फिर बाद में उसको रिलीज़ करना चाहिए। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड टेकिंग बाथ डायरेक्टली इन टैंक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स विच सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोहिबिटेड। जो डायरेक्टली रिवर के अंदर क्लोथ्स क्लीन करते हैं, बाथ लेते हैं, तो वो बंद, प्रोहिबिटेट करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, ड्रिंकिंग वाटर को पॉल्यूटेट करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल एंड लेस स्टेबल पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड। वाटर हाइसिंथ, that is the aquatic weed, can purify the water by taking some toxic materials and a number of heavy metals from the water. तो ये एक aquatic weed है, एक plant है जो वाटर को क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा। Then oil spills in water can be cleaned with the help of brigoli, a byproduct of paper industries resembling sawdust. So these are the control of water pollution. Now what water pollution in Gujarat? Gujarat में water pollution कितना है? As per the Central Pollution Board, there are 4 polluted rivers in the Gujarat out of 20 in India. गुजरात के अंदर टोटल 4 rivers है जो polluted है, साबरमती, नर्मदा, तापी एंड कावेरी. The industries which are responsible polluting the water of rivers are as follows. Total number of large and medium industries are 563 एज पर दी 1993 एंड 1994. अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ 183, पेट्रोकेमिकल 44, मेडिसिन्स 42, पल्प एंड पेपर 41, केमिकल एट 26, पेस्टिसाइड्स 18, डाई एंड डेट स्टफ 17. तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ है जो वाटर पॉल्यूटेड करती है. 6% of villages of Gujarat are having this saline water. 14% of villages are having water containing the fluoride more than the normal value as per the WHO. Right? तो गुजरात में वाटर पॉल्यूशन किस कौन सी रिवर में है, तो 4 रिवर्स के अंदर है, साबरमती, नर्मदा, तापी एंड कावेरी. तो वाटर पॉल्यूशन ये इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है. जैसे गुजरात में सबसे ज़्यादा जामनगर में आपने देखा होगा तो बांधनी बनाते हैं. राइट. तो ये बांधनी बनाने में सबसे ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है. राइट. कलर यूज़ होता है. राइट. वो डाई यूज़ करते हैं. तो वो डाई है, वो वाटर रहता है, वो डाई वाला वाटर वो कहाँ पे रिलीज़ करते हैं, वो रिवर के अंदर रिलीज़ होता है. तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है. राइट. ओके. सो हियर आवर वाटर पॉल्यूशन टॉपिक इज completed, in which what we have to learn, we learn what is water pollution, then types of the water pollution, then quality of water standards, then
effects of water pollution and control measures of water pollution. In the next session, we continue with the next pollution. Till then, goodbye, stay fit, stay happy. Thank you.